کراچی جرائم کا گڑھ بن گیا ہے۔ سوا دو ماہ میں 20,000 سے زائد جرائم کی وارداتیں، ڈکیتی مزاحمت پر 42 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسٹریٹ کرائم کی روزانہ 250 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ صرف جنوری میں 7,806 راہزنی کی وارداتیں ریکارڈ ہوئیں۔ مارچ کے 20 دنوں میں 5,197 وارداتیں، 1,536 شہری موبائل فون اور 3,500 سے زائد موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اغوا، برائے تاوان اور بھتہ خوری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں جرائم کی بڑھتی وارداتیں پولیس کے لیے چیلنج۔ سوا دو ماہ میں 20,000 سے زائد جرائم کی وارداتیں سامنے آئیں۔ اسٹریٹ کرائم کی یومیہ شرح 256 سے تجاوز کر گئی۔ 2022 میں اسٹریٹ کرائم کی 235 جبکہ 2023 میں 238 تک جا پہنچی۔ 2024 میں ڈکیتی مزاحمت پر 42 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسٹریٹ کرائم کی روزانہ 250 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ صرف جنوری میں 7,806 راہزنی کی وارداتیں ریکارڈ ہوئیں۔ فروری میں 7,297 وارداتیں ریکارڈ کا حصہ بنی تھیں۔ مارچ کے 20 دنوں میں 5,197 وارداتیں کی گئیں۔ 1,536 شہری موبائل فون اور 3,500 سے زائد موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے۔ کار لفٹنگ کی بھی 118 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ رواں سال اب تک 13,469 کاریں چھینی یا چوری کی گئیں۔ پولیس نے 1,047 اسٹریٹ کرمنلز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق اسٹریٹ کرمنلز سے پولیس کے 228 مقابلے ہوئے۔ پولیس مقابلوں میں 42 ڈاکو مارے جا چکے ہیں۔ 229 ملزمان کو مقابلے کے دوران زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ کراچی کا کوئی بھی کونا ہو، کسی بھی وقت ہو، ڈکیت آتے ہیں، شہریوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ کراچی پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21۔ عید قرباں ابھی دور لیکن جانور ابھی سے لوٹے جانے لگے۔ بھینس کالون سے مسلح ملزمان 5 قیمتی جانور لوٹ کر لے گئے۔ مسلح ملزمان سیکیورٹی گارڈ کا ریپیٹر اور CCTV کیمرے بھی لے گئے۔ پولیس نے کمپنی کے جنرل مینیجر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سلمان سلیم سے۔ جی سلمان، بتائیے گا۔ دیکھیں، بالکل بھینس کالونی میں ایک بار پھر ڈکیتی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ عید قرباں ابھی دور ہے لیکن جانور ابھی سے جو ہے وہ لوٹے جانے لگے ہیں۔ قیمتی جانور ایک نجی کمپنی کے پلاٹ سے لوٹے گئے، جبکہ مسلح ملزمان سیکورٹی گارڈ کا ریپیٹر اور CCTV کیمرے بھی ساتھ لے گئے۔ پولیس ہے کہ باقی جو پورا واقعہ ہوا ہے اس کا مقدمہ جو ہے وہ سکھن تھانے میں درج کروا دیا گیا ہے۔ تاہم جو ڈیری کیٹل فارمرز ایسوسیشن کے صدر ہیں، انہوں نے پولیس سے یہ درخواست کی ہے کہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور فوری طور کے اوپر جو جانور ہیں ان کو بازیافت کروایا جائے۔ 5 جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جانور جو ہے وہ لوٹے گئے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ سکھن تھانے کی حدود میں پورے ٹرک جو ہے وہ لوٹے جا چکے ہیں، جو کہ مویشیوں سے بھرے ہوتے تھے اسلحے کے زور کے اوپر، اور اب ایک بار پھر جو ہے یہ معاملہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس جو ڈکیتی ہے، اس سے جو مدعی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے ملازم کے اوپر جو ہے وہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس واردات کے اندر ملوث ہو۔ تاہم پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ سکھن پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ ڈیری کیٹل فارمرز کا جو ہے وہ وارداتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار ان کی جانب سے سامنے آیا، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سلمان سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس حوالے سے صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی شاکر گجر کا کیا کہنا ہے، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ مال مویشی چھیننے کے، اسلحے کے زور پہ باڑوں میں گھس کے لے کے جانے کے واقعات تسلسل سے جاری ہیں۔ ہم لکھتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں تو واقعات رک جاتے ہیں، پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کل رات کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کسان کے قربانی کے 5 قیمتی جانور اسلحے کے زور پہ تھانہ سکھن ضلع ملیر کی حدود سے اسلحے کے زور پہ لوٹ لیے گئے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جناب، ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں یہاں پہ، کراچی میں بھی ہم غیر محفوظ ہیں۔ چلو سندھ کے تو واقعات، اندرون سندھ کے تو ہم سنتے ہیں، باڑوں میں گھس کے ڈکیتی کرنے کے جو واقعات ہیں اس کی روک تھام کے لیے آپ کوئی بہتر پالیسی بنائیں، ہمارا انپٹ لیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حدود بہت بڑی ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پولیس موبائلیں فراہم کی جائیں، نفری فراہم کی جائے،
और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कैटल कॉलोनी की हदूद में एक अलग छोटा थाना बना दिया जाए, ताकि हमारी इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए हम सुख का सांस ले सकें, रोकथाम हो सके। या फिर आप हमें असला लाइसेंस जारी। चंद मिनटों में लेबॉर्ट्री में वारदात। खोखरा पार्क की हदूद में वाक़या लेबॉर्ट्री में डाकू की लूटमार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। पुलिस हुकाम ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया है। खोखरा पार्क थाने की हदूद है, खोखरा पार्क नंबर 1। यहाँ पर एक निजी लेबॉर्ट्री है जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिटी 21 ने हासिल की है। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है 2 मुल्ज़िमान जो कि पैंट शर्ट पहने हुए हैं इस लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए हैं। उन्होंने मास्क लगा रखे हैं। सबसे पहले काउंटर तो बैठे हुए शख्स को और एक खातून जो कि टेस्ट के लिए यहाँ पर आई थी, उन दोनों से उन्होंने मोबाइल फ़ोन नकदी छीनी है। उसके बाद जो अंदर लैब टेक्नीशियन था उसको भी बाहर बुलाने के बाद उससे भी लूटमार की है। और उसके बाद ही मुलजिम इनमें से एक मुलजिम जो है वो बड़ी तफसीली तौर पर जो है वो काउंटर के तमाम दराजों की तलाशी भी लेता रहा है। चंद मिनटों में मुलजिमान ने वारदात की है। वारदात करने के बाद ये फरार हो गए हैं। इस वाक़े की रिपोर्ट खोखरा पार्क थाने में दर्ज करा दी गई है और पुलिस का यह कहना है कि जल्दी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकती है। अच्छा मेराज, हम देखते हैं सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ जाती है, लेकिन पुलिस क्यों नाकाम दिखाई देती है मुलजिमान को पकड़ने में? देखिए जी, कराची शहर में डकैती की वारदातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस आने के बाद भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी तक जो है कराची की पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है शुरू नहीं कर सकी है। तो इस हवाले से भी, और दूसरी बात नफरी की कमी की वजह से भी वाक़यात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहरहाल CCPO और कराची जो है वो उनका यही दावा है कि वारदातों में कमी आई है, लेकिन उनका ये दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि कराची में लूट मार और डकैती की वारदातें पहले से मजीद बढ़ चुकी हैं और पुलिस जो है इस हवाले से अपना एक ही बयान जारी करती है कि जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अमली तौर पर नजर नहीं आता। जी ठीक है मेराज अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक तो न संभली, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन का इदारा बन गया। बिल्कुल, 2.5 माह में शहरियों से 33 करोड़ कमा लिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बजाय रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस करने लगी है। हर चालान अफसर को योमिया 25 चालान करने की हिदायत कर दी गई है। सिटी 21 ने इब्तदाई 2.5 माह में जुर्मानों की तफसीलात हासिल कर ली हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में। कराची का बेहंगम ट्रैफिक सिस्टम। ट्रैफिक पुलिस पैसे बटोरने में मसरूफ। शहरियों के लिए गाड़ी सड़क पर लाना अजियतनाक बन गया। DIG इकबाल दारा ने ट्रैफिक पुलिस को रेवेन्यू जनरेशन का इदारा बनाया। 2.5 माह में शहरियों से 33 करोड़ कमा लिए। हर चालान ऑफिसर को यौमिया 25 चालान करने की हिदायत कर दी गई। चालान कम करने पर सेक्शन ऑफिसर्स को शोकास जारी किया गया। सिटी 21 ने इब्तदाई 2.5 माह में जुर्मानों की तफसीलात हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने 16 मार्च तक 5,77,313 चालान किए। 6.25 लाख चालान से 33 करोड़ 84 लाख की आमदनी हुई। इब्तदाई 2.5 माह में सबसे ज्यादा चालान मोटरसाइकिल सवारों के किए गए। मोटरसाइकिल सवारों के 2.5 माह में 3,16,75 चालान किए गए। गरीब की सवारी चलाने वालों से 3 करोड़ 17 लाख की आमदनी हुई। इब्तदाई 2.5 माह में कार ड्राइवर्स के 46,145 चालान किए गए। कार ड्राइवर्स के चालान से 3 करोड़ 17 लाख की आमदनी हुई। ट्रैफिक कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर रिक्शा ड्राइवर्स का चालान तीसरे नंबर पर रहा। ट्रैफिक पुलिस चालान मुहिम में मसरूफ। शहर में हादसा बढ़ गए। इब्तदाई 2.5 माह में 281 शहरी ट्रैफिक हादसात में जान बहक हो गए। ट्रैफिक पुलिस ने इसी दौरानिये में शहरियों के चालान करके 33 करोड़ कमा लिए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बजाय रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस करने से शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। ट्रैफिक हादसात में 2.5 माह में 2000 शहरी जख्मी भी हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस चालान मुहिम में मसरूफ हो गई है। शहर में हादसात बढ़ गए हैं। इब्तदाई 2.5 माह में 281 शहरी ट्रैफिक हादसात में जान बहक हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस ने इसी दौरानिये में शहरियों के चालान करके 33 करोड़ कमाए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बजाय रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों के चालान पे चालान किए जा रहे हैं। हादसात में इजाफा देखा जा रहा है। शहर का हुलिया बिगड़ गया है, लेकिन इसकी वजह क्या है, कौन है, ये नहीं पता चल सकता है। अभी जो अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं, अब इब्तदाई 2.5 माह की डिटेल्स हैं, जिसमें 281 शहरी ट्रैफिक हादसात में अपनी जान गंवा बैठे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने इसी दौरानिये में शहरियों के चालान करके
33 करोड़ कमाए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बजाय रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। बढ़ते ट्रैफिक हादसात हालात जो हैं वो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को भी मसला हो सकता है। 2.5 माह की सिर्फ रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं जिसमें 281 शहरी ट्रैफिक हादसात में जान बहक हुए हैं। शहरियों को भी ओवर स्पीड से मना किया जाता है, रोका जाता है, मैनेज किया जाता है, लेकिन फिर भी हादसात में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 2.5 माह की अगर रिपोर्ट हम देख रहे हैं वहाँ पर 281 शहरी ट्रैफिक हादसात में जान बहक हुए हैं और यहाँ पर चालान भी किए जा रहे हैं। 33 करोड़ कमा लिए हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, हादसात भी कंट्रोल नहीं है, 33 करोड़ भी चालान भी हो चुका है। जी, ये सारा मामला जो है वो साबिक डीआईजी जो इकबाल दारा, जिनका 2 दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है इस ओहदे से, उनके दौर में ये सारी चीजें शुरू हुई थी। और जो ये जो पूरा शहर है इसमें उन्होंने जो चालान अफसर है, हर सेक्शन के अंदर जो है वो चालान अफसर होते हैं, हर चालान अफसर को टारगेट दे दिया था कि उसने कम से कम 25 चालान योमिया करने हैं। इन 25 चालान के जरिए जो रकम कमाई गई, सिर्फ अगर हम इब्तिदाई 2.5 माह की बात करें जो नया साल शुरू हुआ है, तो इस दौरान 33 करोड़ रुपए जो है वो कमाए हैं ट्रैफिक पुलिस ने। और इसकी दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो जो असल काम है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट। उस ट्रैफिक मैनेजमेंट को करने में हमें ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है। सिर्फ 2.5 माह में 281 शहरी ट्रैफिक हादसात में जाम बहक हुए हैं। और ट्रैफिक हादसात उसी वक्त होते हैं जब ट्रैफिक पुलिस जो है वो नाकाम हो जाए, तो शहरियों को ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट में नाकाम हो। तो और इसी स्थिति यही नहीं कि 281 शहरी जो है वो जाम बहक हो गए, इन 2.5 माह में 2000 शहरी जो है वो ट्रैफिक हादसात में जख्मी भी हुए हैं। तो एक तरफ 33 करोड़ है जो पुलिस ने जो है वो चालान के जरिए कमाए हैं, तो दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक पुलिस की फोकस न करने की वजह से, जो अपना उनका असल काम है उस पर फोकस न करने की वजह से शहरी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो शहर में मारे भी गए हैं और जख्मी भी हुए हैं। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का असल काम जो है वो ये होता है कि वो अगर कहीं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी देखें तो उसको रोककर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नजर ये आ रहा है पिछले कई महीनों से कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो स्नैप चेकिंग कर रही होती है। वो मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाकर खड़े हो जाते हैं। उनका काम जो है बजाय तो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है, लेकिन वो ट्रैफिक के रवानी को भी मुतासिर करते हैं। हर आने वाली गाड़ी को चेक करते हैं, उसके कागजात चेक करते हैं, हेलमेट चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको जो है बाकायदा तौर पर जो चालान कर रहे होते हैं। तो असल फोकस जो है ट्रैफिक पुलिस का वो नजर आ रहा था, वो इस वक्त भी नजर आ रहा है कि वो ट्रैफिक मैनेजमेंट पर नहीं है बल्कि रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर है। और इस वक्त जो ये फोकस है इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस इस वक्त रेवेन्यू जनरेशन का इदारा बनकर रह गया है। 33 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और अभी आगे भी जो है पूरा साल पड़ा है, इसमें पता नहीं है ट्रैफिक पुलिस जो है वो कौन से कारनामे करेगी। इसमें एक और दूसरी बात बहुत अहम है कि अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो रही है तो उसका रिजल्ट जो है वो एक तरफ तो हादसात की सूरत में आ रहा है, दूसरी तरफ जो शहरी ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं। रमजान में आमतौर पर जो है वो ट्रैफिक के जो दौरानिया होता है शहरियों के अपने घरों की तरफ जाने का, वो चेंज हो जाता है आम दिनों के मुकाबले में। और हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर शहर की शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक जैम हो रहा है, शहरी ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, लंबी कतारें शाहराहों पर नजर आ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब इफ्तार का वक्त करीब आता है तो उस वक्त भी ये सिचुएशन पैदा होती है कि शहरी ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं, मगरिब की अजान हो जाती है, वो रोजा जो है उन्हें रोड पर ही इफ्तार करना पड़ता है। तो ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिस अपने असल काम को छोड़कर किसी और काम के ऊपर जो है वो लगी हुई है। उनका फोकस जो है वो रेवेन्यू जनरेशन बना हुआ है। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो उनका मेन काम है उससे जो है वो उस वक्त ना कर रहे हैं, वो उसमें करने में नाकाम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है साबिक डीआईजी ट्रैफिक हैं इकबाल दारा, जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये अहकाम दिए थे कि 25 चालान योमिया हर चालान अफसर को करने हैं। और चालान अफसर जो है अगर ये इसमें नाकाम रहते थे तो उनको बाकायदा तौर पर शोकाज नोटिस जारी किए जाते थे। उन शोकाज नोटिस से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो अमलन, अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो गलत नहीं होगा, कि शहरियों पर टूटी पड़ी है। और इस दौरान जो है वो हर ट्रैफिक पुलिस जो है वो शहरियों पर टूटी पड़ी है और 25 चालान का रोजाना की बुनियाद पर एक टारगेट दिया गया है और जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका, इसकी वजूहात क्या है ये बताएंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, जहां आज दुनिया भर में जो है वो पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वहीं आज भी जो है शहर कायद के बेशतर इलाकों में जो है वो पानी का मसला ताहाल हल तलब है। इस वक्त जो है
फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 के अंदर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता कई महीनों से यहाँ पे जो वो पानी की किल्लत आप बढ़ती चली जा रही है, जिसके बायस जो वो इलाका मकीन शदीद परेशानी के शिकार हैं। इस वक्त कुछ इलाका मकीन हमारे हमरा मौजूद भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर, कब से जो वो इलाके के अंदर पानी का मसला है और कितनी जो वो दुश्वारी पेश आ रही है, खासकर रमज़ान मुबारक के महीने? काफ़ी रमज़ान में तो बिल्कुल ही पानी का टैंकर डलवा रहे हैं हम लोग मस्जिद में पानी के लिए। 7,500-10,000 रुपये का टैंकर आता है, वो अभी तक है ना कितने टैंकर डलवा चुके हैं अभी। और इलाके में मस्जिद के लिए तकरीबन 8 टैंकर आ चुके हैं पहली तारीख से अभी तक, और ये रिकॉर्ड में मौजूद है हमारे पास। इसकी स्लिपें भी घर पे रखी हुई हैं। ये हिसाब किताब टैंकर का है, ये टैंकर का सारा हिसाब लिखा हुआ है। चंदा देख लें हमारे पास क्या आ रहा है और हम पानी की मद में क्या दे रहे हैं इनको, वाटर बोर्ड वालों, इनको हाइड्रेंट वालों को। तो हमारे साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है भाई, इसलिए कि मस्जिद में माशाल्लाह हर नमाज में जुम्मे से ज़्यादा नमाजी होते हैं हर नमाज में, और रोज़ाना हमारे को तकरीबन 1 से 1.5 टैंकर की ज़रूरत है पानी की, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। हम चंदा करते हैं, चंदे से टैंकर मंगवाते हैं पानी के लिए, नमाजियों के लिए। अब तक जो वो रमज़ान मुबारक के एक अशरे के अंदर ही जो वो मस्जिद के अंदर जो वो 15 से ज़ायद जो वो टैंकर जो वो ज़ाती खर्चे पे जो वो मंगाए जा चुके हैं, जिससे जो वो ना सिर्फ इलाका मकीन बल्कि जो वो मस्जिद में आने वाले नमाजी भी जो वो शदीद परेशानी का शिकार है। जी। केटी बंदर के माहीगीरों पर किस्मत मेहरबान हो गई। बहिरा अरब की काइनर क्रीक में मछेरों के जाल में अरबों रुपए की कीमती सुआ मछली फंस गई। तर्जमान कोस्टल मीडिया कमाल शाह के मुताबिक माहीगीरों की जाल में सुआ मछली का बड़ा केच आया है। 3 कश्तियों को सबसे ज्यादा 700 सुआ मछली मिली है। मछलियों की कीमत मार्केट में 1 अरब के करीब बताई जा रही है। दीगर मछेरों को भी करोड़ों रुपए की सुआ मछली मिली है। इस सवाल से डॉक्टर शाजिया क्या कहती हैं? नाजिया, वो जान लेते हैं। सुआ मछली की ग्लोबली जो ओवरऑल प्राइस है वो बहुत हाई है। पाकिस्तानी माहीगीर अपने आप को खुशकिस्मत कंसीडर करते हैं, क्योंकि PKR रुपीज़ में एक सुआ मछली की कीमत अराउंड 2 मिलियन के करीब है। तो अगर आपको 700 के करीब सुआ मछली मिलते हैं तो डेफिनेटली वो माहीगीर खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में उनकी हाई वैल्यू है। सुआ मछली यूजुअली जो हमारे यहाँ अब तक कैच की गई है, ज़्यादातर मॉनसून सीज़न में उसको कैच किया जाता है, और अभी भी मिली है, जैसा कि आपने मेंशन किया है, आज भी हमारे माहीगीरों को मिली है। वो इट्स लाइक अ ड्रीम कि वो देखते हैं कि उनके कैच में सुआ मछली आ जाए। इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ अरसे से इतनी ज़्यादा सुआ मछली जो हमारे माहीगीरों के नेट्स में आ रही हैं, तो क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं। सुआ मछली की मेडिसिनल वैल्यू बहुत अहम है। मेडिसिन के फील्ड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यही एक बुनियादी वजह है कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई है। और करंगी बिलाल कॉलोनी में गटर के ढक्कन गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं सैयद नुमान गुल से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलाल कॉलोनी में, और यहाँ पर बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से सड़कें तो खस्ता हाल थी। अब जो है वो मैन होल के जो ढक्कन हैं, जो गटर के ढक्कन हैं, वो भी अब गायब होने लगे हैं। और अगर मेरे कैमरामैन कयूम शेख आपको दिखा सकें तो मेरे इस जानिब जो है वो खस्ता हाल सड़क भी मौजूद है, जहाँ से गुजरना मुसाफिरों के लिए मुहाल होता जा रहा है। जबकि इन्हीं सड़कों में मौजूद जो सीवरेज की लाइन है, उसके जो मैन होल हैं, जो गटर के ढक्कन हैं, वो अब गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमें बताइएगा, ये गटर के जो ढक्कन गायब हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, और दूसरा इनकी वजह से आपको क्या मुश्किलात हैं? इनकी वजह से हमें ये मुश्किलात हैं, यानी कि जब बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लम इनके लिए हो जाती है, वो गिर जाता है अक्सर ढक्कन में, क्योंकि ये ढक्कन टैंकर्स की वजह से टूट जाते हैं। तो हमने MPA MNA से भी बातचीत की है काफ़ी, वो हमें यही कहते हैं हम आपको ला के दे देंगे, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हमें। ठीक है, यकीनी तौर पर इस वक्त बिलाल कॉलोनी के जो गटर के ढक्कन हैं वो या तो टूट रहे हैं या फिर वो गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो इलाके के बच्चे हैं जो इस सड़क पर खेलते हैं, उन्हें हादसात हो रहा है उनके साथ, और जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से 12 मरतबा दरख्वास्त भी की गई है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि गटर के ढक्कनों का जो है वो मुकम्मल हल निकाला जाए, ताकि इलाके के जो बच्चे हैं वो आसानी से इन सड़क पर खेल सकें। जी। ट्रैफिक को रवां दवां रखने वाले 1000 सिटी वार्डनर्स 4 साल से अफ्तारी अलाउंस से महरूम हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद।
جی بالکل، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، رمضان المبارک کے اخراجات ہیں اور اس کے بعد عید بھی آ رہی ہے. ایسے میں سٹی وارڈن جو ہے وہ سر تھامے دکھائی دیتے ہیں کہ اخراجات کس طرح پورے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 1000 سٹی وارڈن جو ہے وہ سڑکوں پر فرائض انجام دیتے ہیں، جن کو فی کس 7000 روپے جو ہے افطاری الاؤنس کی منظوری دی گئی تھی اس محکمے کے قیام کے بعد. لیکن گزشتہ 4 برس سے یہ اس افطاری الاؤنس کے فنڈ سے محروم ہے. ڈپٹی جو ہے اس محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شہباز صاحب بہت شکریہ. بتائیے گا کیا کچھ امید بنی ہے؟ چوتھا سال ہے یہ افطاری الاؤنس نہیں مل رہا. جی رضوان صاحب، یہ سابقہ میئر وسیم اختر صاحب کے ٹائم سے ہمارا افطاری الاؤنس بند ہوا ہے، ہمیں نہیں ملا. لاسٹ ٹائم جب میئر کراچی، موجودہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب جب ایڈمنسٹریٹر کراچی بن کے آئے تھے تو انہوں نے ہم پہ نظر کرم کی تھی اور ان کی مہربانی سے ہمیں ایک افطاری الاؤنس اس وقت ملا تھا. جی بالکل، ہر سال جو ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی نوٹ شیٹ جو ہے موو کر دیتے ہیں. اس دفعہ بھی ہم نے اپنی نوٹ شیٹ موو کی ہے. بس میئر صاحب کی طرف سے نظر کرم کی انتظار ہے کہ میئر صاحب ہم پہ ایک مرتبہ پھر نظر کرم کریں. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ والی صورتحال ہے سٹی وارڈن کی، جو کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب سے جو ہے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ 4 سال کے واجبات میں سے کچھ نہ کچھ ان کو ملے گا، جس سے ان کی سٹی وارڈن کی عید اچھی ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ داد رسی ہو سکتی ہے. جی ملک کے 5 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. وزارت قومی صحت کے مطابق کیماڑی کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. اس پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے بابر شہزاد ترک سے. بابر بتائیے گا. دیکھیے، ملک کے 5 اضلاع کے 6 جو ماحولیاتی نمونے ہیں، 5 اضلاع سے حاصل کی گئی 6 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس جو ہے وہ پایا گیا ہے. قومی ادارہ صحت نے اس معاملے کی تصدیق کر دی ہے. قومی ادارہ صحت کے مطابق جو انسداد پولیو لیبارٹری ہے اس نے یہ تصدیق کی ہے کہ 4 سے 5 مارچ درمیان کراچی کیماڑی سے لیے گئے 2 ماحولیاتی نمونوں اور حیدرآباد، ملتان، کوئٹہ اور فیصل آباد سے لیے گئے سیوریج کے پانی کے ایک نمونے میں پولیو وائرس پایا گیا ہے. ان نمونوں میں پائے جانے والے وائرس کا تعلق پولیو وائرس کے جینیاتی کلسٹر YB3 سے ہے، جو 2021 میں پاکستان سے ختم ہو گیا تھا اور افغانستان میں یہ باقی تھا اور جنوری 2023 میں 10 سال سے ایک بار سے پاکستان میں آیا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. کرنگی سو کوارٹر میں سیوریج اور کچرے کے انبار. جامعہ مسجد دارالاسلام کے آگے گندا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سیوریج مسائل نے علاقہ مکینوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کرنگی سو کوارٹر کے یہ مناظر ہیں جہاں پر سیوریج اور کچرے کے انبار لگے ہیں اور جامعہ مسجد دارالاسلام کے آگے گندا پانی جمع ہے، جس سے نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. علاقہ مکین پریشان ہو گئے ہیں. کہتے ہیں متعدد بار شکایات کی ہیں لیکن کوئی ازالہ کرنے کے لیے نہیں آتا. وجوہات کیا ہیں بات کریں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ شاہد. اقصیٰ اپڈیٹ کیجیے. کرنگی سو کوارٹر کے مقام پر میں اس وقت موجود ہوں، یہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ مسجد ہو، اسکول ہو یا پھر یہاں کے رہائشی ہوں، ان کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ گھروں کے باہر جو ہے وہ پانی جمع ہو چکا ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گی کہ وہ یہاں پر آئیں اور دکھائیں کہ کرنگی کے لوگ جو ہے وہ کس حالات میں، کس تکلیف میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ ان کے گھروں کے باہر جو ہے وہ پانی اس قدر جمع ہے. ننھے منھے بچے یہاں پر موجود ہیں. یہ اسکول مدرسے کس پریشانی کا سامنا کر کے جاتے ہیں. 75 لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لگائے ہوئے. اس وقت بھی بچے ٹیوشن سے آ رہے ہیں بیگ پہنی ہوئی، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آ رہی ہے پتھروں کو پھیلانگتے ہوئے. اگر وہ بچی اس میں گر جاتی تو اسے چوٹ بھی لگ سکتی ہے، گندی تو وہ ہو ہی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ بیماریاں بھی یہاں پر جنم لے رہی ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہاں کے کرنگی UC 10 کے چیئرمین عبدالحفیظ سے کانٹیکٹ کیا. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بتائیے گا کہ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر مسائل بڑھ چکے ہیں. کیا وجوہات ہے ایک سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس اہم ہمارے مسئلے پر آپ ہمارے ہیلپ اور سپورٹ کے لیے یہاں تشریف لے کر آئی ہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں کیونکہ میڈیا ایک ایسی طاقت ہے کہ جو جہاں بھی اس طرح کے مسائل ہوں، اگر وہ اور منتخب لوگ مل کر ایریے کے مسائل کو اجاگر کریں تو یقیناً انتظامیہ کی توجہ جانب آئے گی. دیکھیں، یہ ہمارا علاقہ ہے وارڈ 3 ہے اور وارڈ 3 کا علاقہ ڈی ایریا اور ای ایریا کے ساتھ ہم کھڑے ہیں
और सामने हमारे जी एरिया है। ये 18 इंच की लाइन है जो तकरीबन आज इसको 25 दिन हो गए इस तरह की सूरत हाल को, शायद इससे भी कुछ 2-4 दिन ज़्यादा ही हो जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमने जैसे ही ये लाइन यहाँ पे संक डाउन हुई थी, हमने इससे पहले आज से 6 महीने पहले इस पूरी लाइन की विंचिंग कराई थी इसी बेस पे, क्योंकि ये इस हमारी यूसी का 75% एवरेज का पानी ये लाइन लेके आगे जाती है और फिर आगे 24 और 48 के अंदर मेन जो सिस्टम लांडी कोरंगी का चल रहा है अपर लांडी लोअर लांडी के अंदर मिलती है। और हमारी यूसी का समझे 70-85% पानी इसी लाइन के जरिए आगे जा रहा है। जैसे इस लाइन की हमने प्लान किया, इसकी सफाई कराई, अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइन हमने चैनल सफा की। उसके बाद फौरी तौर पर जब कुछ दिन के बाद ही दोबारा हमने देखा ओवरफ्लो शुरू हो गया है, तो हमने फ़ौरन एक्सीएन सेवरेज जनाब यहाँ पे आबिद शेख साहब, उनके असिस्टेंट जनाब इसला साहब, उनसे विजिट कराया और ये डायग्नोज हुआ कि जी यहाँ पर ये लाइन बैठ गई है, सिंक डाउन हो गई है और रिप्लेस होगी। उसके लिए फ़ौरन इनिशिएटिव लिया हमने और वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर जनाब आफ्ताब अली चांडियो साहब से और सीओ और जो इस वक्त एमडी का चार्ज भी असदुल्ला साहब, उनसे रब्ता किया। उन्होंने फ़ौरन 1 पेज सिंगल अप्रूवल एक कहलाती है इनके सिस्टम में कि जी बजाय टेंडर के इमरजेंसी काम है, उसकी एक अप्रूवल का प्रोसेस हुआ और उसके नतीजे में ये काम असाइन हुआ एक ठेकेदार खस्ता वली साहब को। और ये 2 जगह से संकडाउन हुई है, एक जी एरिया के अंदर गुलिस्तान मस्जिद के सामने और एक ये हमारा इलाका है डी एरिया का, जहाँ पे हमारी दारुस्सलाम मस्जिद मुतासिर हो रही है। पीछे जाएंगे आप अक्सा मस्जिद है और इसी अवैस करनी मस्जिद है। तो ये तमाम वो मसाजिद हैं जिस वक्त माह मुबारक हम मुसलमान माशरे में रहते हैं। अच्छा ये बताइएगा अब इनका हल ठीक है, क्या अक्सर निकला? शायद कब तक हमें ये मसाइल अपडेट जो है वो करी थी। चेयरमैन थे यूसी 10 के अब्दुल हफीज, उनके साथ मौजूद थे, बातचीत करते मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। सदर कराची बस ऑनर एसोसिएशन इरशाद हुसैन बुखारी इंतकाल कर गए। इस पर मजीद बात करेंगे, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफसोसनाक खबर है, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी इंतकाल कर गए। अभी हमारी नायब सदर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद तवाब खान से बात हुई थी। उनका कहना है कि 2 दिन कबल उनकी जो है वो इरशाद बुखारी से बात हुई थी कि वो बीमार थे और इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि उनकी जो साहबजादे हैं और उनमें से एक जो अमरीका में है, 2 इराक में है, तो जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनकी नमाज जनाजा के में इंतजाम किए जाएंगे। इस हवाले से फैमिली जराये से बात हुई है, तो फैमिली जराये का ये कहना है कि कल जो है वो दोपहर 2 बजे फैकल्टी एरिया ब्लॉक 12 के जो ग्राउंड है वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद तस्लीम की जाएगी। ठीक है, काविश मेमन हमें अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सजाओं में खुसूसी छूट का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फित्र के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ की कमी की मंजूरी दे दी है। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। सजाओं में कमी का इतलाक जना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर भी नहीं होगा। अपडेट कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सजाओं में खुसूसी छूट का ऐलान कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं कि सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। शहर कायद में मौसम इस वक्त गर्म है और मौजूदा दर्जा हरारत क्या है, आयमा खान बताएंगी। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में गर्मी का राज जो है वो इस वक्त भी बरकरार है। शहर में जो है वो इस वक्त तेज़ धूप निकली हुई है, जबकि हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो चुका है। शहर में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल हैं। जुनूब मगरबी सिम से जो हवाएं चल रही हैं उनकी रफ्तार 22 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और गर्मी की शिद्दत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, हमें बताइएगा कब तक शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी और ये भी बताइएगा कि दर्जा हरारत आइंदा आने वाले दिनों में कितना रहेगा? जी देखें, वैसे तो मार्च का महीना ऐसा होता है कि जिसमें कराची में ख़ासकर जो आखिरी दिन होते हैं 15 मार्च या स्पेसिफिकली कहें तो 20 मार्च के बाद गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली। उसकी वजह यही है कि बिल्कुल सनी डेज़ होते हैं, आपको पता है, और विंड निस्बतन कम स्पीड की विंड चल रही होती है, यानी 4 से 6 नॉटिकल माइल या ज़्यादा से ज़्यादा 8 नॉटिकल माइल। और अगर तेज़ हवाएँ हों तो उसके बायस ज़ाहिर है फिर बादल कुछ ना कुछ आएँ तो टेम्परेचर माइल्ड रहता है। अदरवाइज़ यही 34 यानी 33 तो तकरीबन 32.6 है, 33 कह सकते हैं हम उसे, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर है या एवरेज टेम्परेचर है मार्च के महीने का।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद थे। इनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो मौसम है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। नमी का तनासुब जो हवाएं बहाल होने के बायस जनूब मगरबी सिम से जो हवाएं चल रही हैं उनके बहाल होने के बायस जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ गया है। इस वजह से जो दर्जा हरारत है उसकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है और आइंदा आने वाले चंद दिनों तक मौसम जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। जी।